Paul called himself apostle. पौलुस अपने आप को प्रेरित बोलता था। I, Paul, मैं प्रेरित पौलुस, apostle of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। It's good to know what God has put upon us. ये अच्छी बात है इसको जानना कि प्रभु ने Praise the Lord and welcome once again. प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है And come and join us in worshiping God together. कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना में शामिल हो सकते हैं। God has been good to us. परमेश्वर हमारे प्रति भला रहा है प्रियो। Amen. आमेन। I trust we all can say that. और मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी इस बात की गवाही दे सकते हैं। Amen. Shall we sing a few songs and worship God together? क्यों न कुछ गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करें। Sing that song, पावन है वो प्रभु हमारा. उस गीत को हम गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो. निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो. जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो. प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान. प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान. पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण. उसकी जय जयकार करो. जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो. दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता. दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता. सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता. उसकी जय जयकार करो. जय हो 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 जय हो. प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारण
जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। Amen. हालेलुया। We are together again, हम फिर से एकत्रित हुए हैं praising the Lord. प्रभु की स्तुति करने के लिए। Amen. आमेन। Something good happens when we worship God. और जब कभी भी हम प्रभु की ऐसी आराधना करते हैं वहां पर कुछ अच्छा होगा। Amen. Thank you, Lord. We are together again, just praising the Lord. We are together again with one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We are together again, just praising the Lord. We are together again, just praising the Lord. We are together again with one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We are together again, just praising the Lord. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. It gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep proving His love to me over and over and over and over again. I keep proving His love to me over and over and over and over again. It gets richer and richer as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. I keep proving His love to me over and over and over and over again. So good to be in the arms of my Lord. It's so good to be in the arms of my Lord. It's so good to be in the everlasting arms of the Lord. It's so good to be in the arms of my Lord. It's so good to be in the arms of my Lord. It's so good to be in the arms of my Lord. It's so good to be in the everlasting arms of the Lord. It's so good to be in the arms of my Lord. Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। It's good to worship God. We don't feel like stopping. परमेश्वर की जब हम आराधना करने लगते प्रियो, ओ हम नहीं चाहते कि उसको रोकें। Amen. आमेन। A wonderful day is going to come. परमेश्वर हमारे लिए बहुत सुंदर दिन आने वाले हैं जो उसने रखा है। Jesus is coming back again. यीशु मसीह फिर से वापस लौट रहा है। And He's going to take us to a place where He is prepared for us. और वो हमको एक ऐसी जगह में लेकर जाएगा जो स्थान उसने हमारे लिए आसमानों में बनाया है। There's one Hindi song which says, एक हिंदी का गीत तो कहता है, आसमानों में भी है मेरा एक मकान। आसमानों में भी है मेरा भी एक मकान। Amen. आमेन। That's your permanent address.
और By वो the way. हमारा स्थायी पता है। Hallelujah. हालेलुया। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही, जिसने किया है वादा, वादा सच्चा सही। जिसने किया है वादा, वादा सच्चा सही। जग बनाऊंगा जाके अपने पिता के यहाँ, जग बनाऊंगा जाके अपने पिता के यहाँ। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। लिखा गया मेमने की पुस्तक में मेरा भी नाम, लिखा गया मेमने की पुस्तक में मेरा भी नाम। कुछ पापी पड़ुआ था, उसके फसल के ये काम। कुछ पापी पड़ुआ था, उसकी फसल के ये काम। उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, जिसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। Hallelujah. हालेलुया। I go to prepare a place for you, Jesus said. यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने को जाता हूँ, If I go, I'll come back again, receive you unto myself. और यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे को लेने के लिए फिर वापस आऊंगा। What a glorious message. कैसा ही महिमा में संदेश है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We look forward. हम आगे की ओर देखते We हैं, don't look at the grave. हम कब्र की तरफ नहीं देखते, Look beyond the grave. परंतु कब्र के उस पार की जिंदगी की तरफ देख रहे Eternal हैं, city. अनंत काल के उस नगर की ओर। Abraham sought for that city, अब्राहम ऐसे ही एक नगर की खोज में था, whose maker and builder is God. जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था। Oh, hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Worship God for some time. प्रभु की उपासना करें। When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to save, He will save. When the Lord begins to save, He will save.
save, He will save. When the Lord begins to save, He will save. When the Lord begins to heal, He will heal. When the Lord begins to heal, He will heal. When the Lord begins to heal, He will heal. When the Lord begins to heal, He will heal. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. Hallelujah. Hallelujah. Sing it again. Help us, Spirit of God. परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। Break your bread of life unto us. जीवन की उस रोटी को हमारे लिए तोड़, Feed us हमें खिला प्रभु, till we want no more. जब तक कि हमें और आवश्यकता ना हो। May your blessing abound in such a manner तेरी आशीष हमारे जीवन के ऊपर ऐसे भरा रहे that after we have eaten, कि जब प्रभु तेरे कलाम से हम खाएं, still there will remain 12 baskets full तो भी वहां 12 टोकरियां भरपूर भरी रहे for others. दूसरों के लिए भी प्रभु Bless us, Lord. आशीष दे स्वामी, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank the Lord once again that we could look into the Word. परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर कि हम परमेश्वर के वचन में से देख सकते हैं। Last time we were looking at what the church is. और बीते समय हम देख रहे थे कि कलीसिया क्या है। And we'll try to understand little bit what we know. और हम इस बात को समझने का कुछ प्रयास कर रहे हैं जो हम जानते हैं वचन से। Also last time we said that there are certain symbols about the church. और पिछली बार हमने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे प्रतीक हैं जिसके द्वारा हम कलीसिया को जानते हैं। Now what symbols are given in the Bible? बाइबल में कलीसिया के लिए कैसे चिन्ह या
प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है just to make us understand what the real church is. केवल इस बात को समझने मात्र के लिए वो है कि वास्तविक कलीसिया किस प्रकार की है। Don't buy symbols from the market in regards to church. और बाजार से आप ऐसे प्रतीक चिन्हों को ना खरीदे जो कलीसिया का सूचक है, नहीं। No, we are talking of what is here in the Bible. परंतु बाइबल में जो कलीसिया के लिए जो इस्तेमाल किया गया है हमारे समझाने के लिए, उसके बारे में, Yes, just to make us understand. जिससे कि हम समझ पाए कि कलीसिया क्या चीज है। We saw that the church is also known as the temple. और बीते समय हमने देखा था कि कलीसिया को मंदिर नाम से भी कहा गया है, Or a building, या जिसे हम इमारत कह सकते हैं, a spiritual building, एक आत्मिक इमारत। just like a physical one, जिस प्रकार से एक भौतिक इमारत होती है, so is the spiritual. वैसे ही एक आत्मिक इमारत को हम समझ सकते हैं, What is seen, जो हम देख सकते हैं आंखों से, and we go to the thing which is unseen. उनसे उन आत्मिक चीजों को जो हमको दिखाई नहीं देती समझ सकते A हैं। spiritual body, a spiritual building. एक आत्मिक इमारत या आत्मिक मंदिर। We saw that the hall where we gather is called a church. और हम जानते कि हम जिस हॉल में या जहां पर भी एकत्रित होते हम उसको चर्च कह देते हैं सामान्य तौर से, But actually, the church gathers in that hall. लेकिन वास्तव में उसके अंदर जो विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं उनको हम कलीसिया या चर्च कहते हैं। People make the church. लोग से बना है, लोगों से बना है कलीसिया, Called out one who belong to God. जो बाहर निकाले हुए गए परमेश्वर के लिए। Okay. ठीक है। So we touched on that. हमने इस बात को बीते समय में देखा था, That the foundation of apostles and prophets. और प्रेरितों की शिक्षा और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षाओं के ऊपर में कैसे वो बनी हुई है, Jesus Christ himself, the chief cornerstone. और यीशु मसीह स्वयं उस के नींव का कोने का पत्थर है, Christ is the builder. और उसका निर्माण करने वाला खुद मसीह है। Was born, the church was born on the day of Pentecost. और कलीसिया का जन्म पेंतिकुस्त के दिन में हुआ By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Now we sing, last time we touched a little bit upon the body. और पिछले समय हमने Church- देह जो कि कलीसिया को शरीर भी कहा गया, उसको भी हमने थोड़ा सा देखा था। So I'll just tell you a few things. और मैं कुछ बातों को What we will discuss afterwards. और कुछ बताना चाहूंगा जो आगे चल के हम जिस पर अब चर्चा करेंगे। Church is also known as the body. कलीसिया को देह या शरीर भी कहा गया है, It's also known as the flock of God, और कलीसिया को मसीह की झुंड भी कहा गया है, family of God, परमेश्वर के परिवार भी कहा गया है कलीसिया को, household of God. परमेश्वर का घराना ऐसे भी कहा गया है कलीसिया को, It is also known as the bride of Christ. और मसीह की दुल्हन भी कहा गया है कलीसिया को। And some would say the field of God. और कुछ लोग कहें कि परमेश्वर का वो खेत है, जमीन, ऐसा भी कहा गया It's है। God's husbandry. ये परमेश्वर की खेत है, ऐसा भी कहा गया है। And we could add one more. और हम उसमें एक और जोड़ सकते हैं, It's an spiritual army. वो कलीसिया एक आत्मिक सेना भी है। Okay. आमीन। Which will stand against the wiles of the enemy. जो शत्रु के हर एक जो आक्रमण के विरुद्ध में खड़ी होती है। Okay. So last time we were discussing about the body. और बीते समय हम शरीर के बारे में तो देख रहे थे, 1 Corinthians 12 chapter. जो हम पाए थे 1 कुरिन्थियों और उसके 12 अध्याय में हमने देखा था, And we read in 14th verse. और उसकी 14 आयत में हमने पढ़ा था For there is one body in many members. कि जिस प्रकार से देह एक है और उसमें अंग बहुत से हैं, And body is not one member, लेकिन इन सब के बावजूद भी पूरा का पूरा देह एक अंग नहीं है, but many members. परंतु उसमें कई अंगों से मिलकर देह बना है। And verse 24 says, और उसी का 24 आयत कहता है God has tempered them in the body. कि परमेश्वर ने उसको देह में रखा है। Also, और साथ ही में there are certain parts of the body which don't seem very important, शरीर के कुछ अंग ऐसे भी प्रतीत होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं दिखते, but they are very necessary. किंतु फिर भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 27th verse says, 27 आयत में लिखा है, Now ye are the body of Christ and members in particular. इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। Okay. And we saw that Christ is the head. और हमने ये भी देखा था कि इस सिर का, इस देह का जिसका नाम कलीसिया, उसका सर जो है मसीह है। It's the controlling part.
जो इस कलीसिया को नियंत्रित करता है वो व्यक्ति। We have apostles and prophets, हमारे पास pastors, teachers, evangelists. प्रेरित है, भविष्यद्वक्ता है, शिक्षक है, चरवाहे हैं। However powerful that ministry might be, उनकी सेवकाई चाहे कितनी भी सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, Christ is the head of the church. यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। No bishop, no pope. कोई बिशप उसका सिर नहीं है, कोई पोप कलीसिया का सिर नहीं है। The head of the church is Jesus Christ. कलीसिया का जो सिर है, बाइबल कहती है वो प्रभु यीशु मसीह है। Amen. आमीन। You will be surprised to see, और आपको आश्चर्य होगा ये देखकर even in that fivefold ministry, bishop is not mentioned. कि उस 5 जो सेवकाइयां वहां पर लिखी है, भविष्यद्वक्ता और अन्य, उसमें बिशप का उल्लेख नहीं है। There is a ministry of bishop in the church, कलीसिया में बिशप की भी सेवकाई बाइबल में लिखा है, but it is not found there. लेकिन वो 5 सेवकाई के अंतर्गत वो नहीं है। Amen. आमीन। So if you turn to 1 Colossians first chapter, यदि हम कुलुसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय खोल लें we will read 18th verse. और उस एक अध्याय की 18 आयत को यदि पढ़ें, It says like this, या इस प्रकार maybe से 17 and 18. 17 से यदि हम पढ़ लें, And he is before all things, and by him all things consist. वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। And he is the head of the body, the church, who is the beginning of the firstborn from the dead, that in all things he might have preeminence. वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Hallelujah. आमेन। For it pleased the Father that in him should all the fullness dwell. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। Amen. Amen. He takes all the glory. वो सारी महिमा को लेता है। No man should receive glory. कोई मनुष्य को महिमा नहीं मिलनी We can चाहिए। respect men of God, हम परमेश्वर के लोगों का सम्मान और आदर करें, honor them, उनका इज्जत करें, but worship and honor and glory goes to God only. लेकिन महिमा और स्तुति और प्रशंसा केवल प्रभु यीशु मसीह को जाती है। You know, Jesus chose to be the head. आप जानते यीशु मसीह वहां पर प्रधान बनना उसने चुन लिया। Father chose to put him there. पिता ने उसको वहां पर प्रधान करके ठहरा दिया। Hallelujah. Hallelujah. He is before all things. वो सब बातों में पहिलौठा है And by him are all things, by him all things consist. और उसी में सब बातें वास करती हैं। He is the head of the body, the church. और Hallelujah. वो कलीसिया का Amen. सिर यानी कि देह का सिर है। Amen. Amen. We need to check ourselves whether we allow him to direct our path. हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या हम उसको अपने दिशा नियंत्रित करने के लिए Especially अनुमति we देते as ministers of God. हैं। खास करके प्रभु के सेवक होने के नाते Do we take instructions from him? क्या हम प्रभु से निर्देश को प्राप्त करते हैं, Or we do what we think is right? या फिर हम हमारे दृष्टि में जो सही है उसे करते हैं। Second chapter of Colossians, कुलुसियों की दूसरा अध्याय में 9 and 10. और उसकी 9 और 10 आयत, For in him dwelleth the fullness of Godhead bodily. क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। And you are complete in him who is the head of all principalities and powers. और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ is again the head. यीशु मसीह फिर से शिरोमणि है। Amen. आमेन। 19th verse. 19 आयत में लिखा है, He's talking about wrong doctrines coming in and people going elsewhere. जब वो गलत शिक्षाओं की बात कर रहा है, जब लोग यहाँ वहाँ गलत शिक्षाओं के पीछे दौड़े जाते Not हैं taking the instruction which is coming from the head. और सिर से जो निर्देश आ रहा उसको बिना देखे अनदेखा करते हुए यहाँ वहाँ जाते हैं, Body is trying to operate on its own without the head. और शरीर अपने आप में क्रियान्वयन करने का प्रयास करती बिना सिर के। It says here, यहाँ लिखा है 19th verse, 19 आयत, and not holding the head, from which all the body by joints and bands having nourishment ministereth and knit together increaseth with the increase of God. और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर
और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है। Hallelujah. आमेन। Jesus said, I am the vine, you are the branches. यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम उसकी डालियां हो। Without me, you cannot do anything. बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Hallelujah. Hallelujah. However smart we might be, हम चाहे कितने भी चतुर क्यों ना हो, clever कितने होशियार, or crafty, कितने भी चालाक, whatever. चाहे जो भी हो, Listen, सुनिए, all our ways, God's ways are higher than our ways. परमेश्वर का मार्ग हमारे मार्गों से बहुत ऊंचा है। His thoughts are higher than our thoughts. उसके विचार हमारे विचारों से बहुत ऊंचे हैं। Let's take instructions from Him and Him alone. हम परमेश्वर से और केवल उसी से ही सारा निर्देश प्राप्त करें। It is His church. ये क्योंकि उसकी कलीसिया है। Hallelujah. Hallelujah. And He cares for His own. और वो अपनी देह की अब फिक्र करता है। We read last time in Ephesians 1:22. हमने पिछले बार इफिसियों 1:22 में पढ़ा था Christ is the head of all things. कि यीशु to the मसीह church. कलीसिया सब बातों का सिर वही है। Ephesians 5:23 says, और इफिसियों 5:23 में लिखा हुआ है, For as the husband is the head of the wife, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, even as Christ is the head of the church, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, the savior of the body. और वही स्वयं ही देह का उद्धार करता है। Now, he's saying Christ is the head of the church. और वो कह रहा है कि मसीह कलीसिया का सिर है। Now we must understand और हम इस बात को समझ लेना चाहिए that just because he is the head of the church, we will not obey what other things are written in the Bible. केवल इसीलिए कि मसीह जो है वो देह का सिर है, क्या हम बाइबल में लिखी गई अन्य बातों का क्या हम पालन ना करें? What I mean, मेरा मतलब ये है, we won't take instruction from the pastor, from the evangelist and from the teachers. क्या परमेश्वर ने जिसे पासबान को रखा है, चरवाहे को रखा, शिक्षक को रखा है, क्या हम उनसे निर्देश को ना लें? He is the one who has given them to the church. परमेश्वर ने ही उन्हें इन लोगों को कलीसिया को दिया है। Christ gave to the church यीशु मसीह ने कलीसिया को ये लोगों को दिया है, apostles, प्रेरित दिया, prophets, भविष्यद्वक्ता दिया, evangelists, और सुसमाचार प्रचारक दिए, shepherds, और चरवाहे दिए, teachers, शिक्षक दिए, for the perfecting of the church, ताकि कलीसिया सिद्ध बने, mature them, परिपक्व बने, make them strong कलीसिया मजबूत बने, for the work of the ministry, और सेवकाई का काम and the body of Christ be edified. हो और मसीह की देह उन्नति पाए। We all grow in knowledge of the Lord Jesus Christ. और हम सब Maturity. मिलकर परमेश्वर के ज्ञान में परिपक्व हो जाएं। So the more we respect Christ, we will honor the work God has given to His servants. जितना हम अपने प्रभु यीशु मसीह का आदर करेंगे, उतना अधिक हम उसके कार्य का सम्मान भी करेंगे। Amen. आमेन। Body has got a lot of members. देह के अंदर बहुत से अंग होते हैं। Okay. Different area of work. और उनके कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। Romans 12 chapter. रोमी और उसका 12 अध्याय में Romans 12 chapter 12 अध्याय यदि हम देखें 4 and 5 we will try and read. और उसकी 4 और 5 आयत को यदि हम पढ़ लें, It says, For as we have many members in one body, and all members have not the same office. क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, So we being many are one body in Christ, and every one member one of another. वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether it be prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith God has given us. जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। Amen. आमेन। There is one body, एक देह है, many members, बहुत से अंग हैं, and every member has a different area of work. और हर एक अंग का अपना अलग अलग काम है, Different functions, अलग अलग उसके कार्य क्षेत्र हैं, or rather different job has been assigned, या उनको अलग अलग कार्य सौंपा गया है, or different use. या फिर उनका उपयोग अलग अलग है।
Amen. आमेन। So if you understand that, यदि हम इस बात को समझ लें, we will not feel ourselves inferior. हम कभी भी अपने आप को देह में कमजोर या छोटा नहीं समझेंगे, Because so and so is so powerfully used क्योंकि एक अंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है that I seem to be useless. तो ऐसा लगता है कि मैं बेकार हूं। Listen. सुनिए, There are certain things in the body which are very look like they are of no use, but they are essential. शरीर में ऐसे भी अंग हैं जो बहुत ही छोटे और बेकार से लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Your 12th chapter of 1 Corinthians will explain you everything. 1 कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय में आप उसे बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। Amen. आमेन। 12th chapter verse 22 says, और 12 के 22 में लिखा है, 1 Corinthians, पहले कुरिन्थियों में we will read 1 Corinthians 12, 12 और उसके 22 में लिखा है, maybe 21 and 22. if we read, 21 और 22। we will understand it. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, Okay, it says like this. यहाँ ऐसे लिखा है, The eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। Nay, much more these members of the body which seem to be more feeble are necessary. परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। Feeble members are necessary. निर्बल अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। Some people come to church and you think they are just nothing but showpiece. और कुछ लोग कलीसिया में आते, आपको लगता है कि उनका कोई उपयोग नहीं, केवल वो दिखने के लिए है। Your drawing room also got some showpiece. लेकिन याद रखें, आपके ड्राइंग रूम में भी आप शो पीस, केवल दिखावे की चीज तो रखते हैं, Beautifies your church. जो आपके घर को या आपकी कलीसिया की खूबसूरती बनाकर रखते हैं। Amen. आमेन। He may not or she may not be the one who what you think they should be doing, हो सकता है वो व्यक्ति वो ना हो जो आप सोचते हैं उसे होना चाहिए, but it is necessary. परंतु उनकी उपयोग है। What is the need of your eyebrow? आपके आंख की जो भाव है उसकी क्या उपयोग है, Study it. आप उसको अध्ययन करें। Go to YouTube, you'll find it. शायद YouTube में ही आपको और मिल जाएगा। It keeps the dust and the water coming into your eye. और वो धूल को और पसीने को आपके आंख में आने से रोक कर रखता है। Also, साथ में it beautifies your face. वो आपके चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ाता है। And even your expressions are expressed by your eyebrows. यहाँ तक कि लोगों के चेहरे के भाव भी वो आंख के भाव के अनुसार समझ में आती है। One time I was traveling in a train एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था and the guy sitting opposite me looked very funny. और मेरे सामने एक आदमी बैठा था और वो मुझको बहुत अजीब सा नजर आ रहा था। He was all shaven, वो पूरा उसने सर मुड़ा हुआ था, maybe coming from some funeral or something. शायद किसी के अंतिम क्रिया से वो लौट रहा था, But he was looking weird. लेकिन वो सामान्य नहीं दिख रहा था, अजीब दिख रहा था। So I found तो मैंने बहुत ध्यान देखकर पाया that he had shaved off his eyebrows also. कि उसने अपनी आंख के ऊपर की जो भौहें हैं उससे भी उसने साफ करवा दी थी। How funny the church will look जरा सोच कर देखे कलीसिया कैसी अजीब दिखेगी if these small things you want to remove. यदि छोटे छोटे अंग को बेकार समझकर हम हटाना चाहें। You want the powerful ones, the muscles, आप केवल मांसपेशियों को ही चाहते हैं, the hand, हाथ को चाहते हैं, the feet, पाँव को चाहते हैं, the voice, या आवाज को the चाहते हैं, vocal cords. या गले की ध्वनि चाहते हैं, But the small feeble things, लेकिन ये छोटी दिखने वाली निर्बल अंग they are necessary. वो बहुत जरूरी हैं। That is what is beautifying the church. और यही चीज पूरी कलीसिया की खूबसूरती को बरकरार रखी है। Mind you, God has placed them here and there. ध्यान रहे, परमेश्वर ने उनको अलग अलग स्थानों में रखा है प्रियो। Hallelujah. Amen. Some are seen, some are not seen. कुछ तो लोगों के नजरों में दिखाई पड़ते, कुछ नहीं दिखाई देते। You might say, I come to church, nobody recognizes me. आप कहते होंगे कि मैं चर्च आता लेकिन कोई मुझको पहचानता नहीं है, But you are there. लेकिन आप वहाँ रखे गए If हैं। God has placed you there, परमेश्वर ने यदि आपको वहाँ पर रखा है, not everybody is called to preach. हर व्यक्ति प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया There गया are people है। who pray. और जैसे लोग जो प्रार्थना करते हैं, सब उस काम के लिए नहीं बुलाए The गए। people give. लोग देते, People
People are there who assist the ministry. लोग ऐसे भी है जो वहां पर सेवा करते और मदद करने वाले का काम करते The हैं। beauty is all together. They work together. और खूबसूरती ये है कि ये सारे मिलकर जब काम करते हैं। The Bible says बाइबल बोलती in 12th chapter and 25th verse, 12 के 25 में वो कहता है, it says like this, यहाँ लिखा है, maybe 24 and 25 we read. 24, For our comely parts which have no need, but God has tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacketh. फिर भी हमारे शुभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। That there may be no schism in the body, but that the members should have the same care one of another. ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। Amen. आमेन। 24th verse. 24 आए, For our comely parts which have no need, फिर भी हमारे शुभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, but God has put them there. परंतु परमेश्वर ने Hallelujah. देव उनको ऐसा वहां रखा है। You think it's no need? आपको लगता है उसका कोई उपयोग नहीं है? The pastor might think it's no useless. पास्टर को भी लगता है कि उसका कोई उपयोग नहीं, God has placed you. लेकिन परमेश्वर ने उनको वहां रखा है। Hallelujah. हालेलूया, Amen. आमेन। It beautifies the body. वो देह की खूबसूरती के लिए उसने वहां रखा है। Sometimes कभी कभी you might go to the barber and he might mess up with your mustache. आप पार्लर जाते और वो आपकी मूंछ को गलत काट देता है, Or your beard. या आपकी दाढ़ी को वो गलत काटता है। It takes some time for you for that original thing to come back. उसके बाद आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ता है कि वो फिर अपने सामान्य खूबसूरती में लौटे। A lot of things hide our defects also. और बहुत सी चीजें हमारी कमियों को भी छुपा कर रख देती हैं। Amen. आमेन। We are aging उम्र हमारी बढ़ रही है and wrinkles are coming on the face. और झुर्रियां चेहरे में आने लग जाती हैं। If you had sported a beard, maybe it would have hidden it. और यदि दाढ़ी लोगों ने रखी है तो शायद वो झुर्रियां उससे छुप जाती हैं। Amen. Amen. Everything has got its own place. हर चीज का अपना अपना एक महत्व है, You are important too. क्योंकि आप भी महत्वपूर्ण हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Every born again person हर एक उद्धार पाया, नया जन्म पाया व्यक्ति who loves the Lord, walks in the light, जो प्रभु से प्रेम करता, ज्योति में चलता है, he is a part of the body of Christ. वो मसीह की देह का अंग है। Amen. आमेन। The eyebrows, जो आंख की भौं की बात हमने the कही, eyelashes, आंख की जो पलके हैं, they are doing their part. वे अपना कार्य निभा रहे हैं। If they are not there, यदि वे वहां ना हो, the eye will suffer. आंख उनके कारण दुख उठाएगा। Nobody can say, I don't need you. कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझको तुम्हारी आवश्यकता नहीं I है। was reading one small article मैं एक छोटा सा लेख पढ़ रहा था in which somebody had written that the eye and the nose had a fight. कि किसी ने उसमें लिखा था कि आंख और नाक के बीच में एक द्वंद्व हो गया, लड़ाई हो गई। So because this specs, क्योंकि ये जो चश्मा है जो आंख का, the nose is bearing the burden. उसका वजन जो है आंख नहीं ढो रहा परंतु नाक ढो रहा है। So the nose said, I don't want you there. तो नाक ने कहा मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता, Please remove it. It's all marking my. इसको तुम हटाओ क्योंकि इसके निशान मेरे ऊपर पड़ रहे हैं। So he took out the glasses. तो आंख ने उसको अलग कर दिया, नाक के ऊपर से हटा दिया। Now the man couldn't see properly. और अब वो आदमी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। One man was going with a beam. एक आदमी जा रहा था कोई लकड़ी का गट्ठा लेकर, So he banged his nose straight on the beam. तो वो आदमी जो चश्मा अब नहीं पहना था उसका नाक जाकर उससे टकरा गया। Then the nose realized, और तब फिर नाक ने एहसास किया bear one another's burdens. कि एक दूसरे का बोझ उठाओगे सुरक्षित रहोगे। Hallelujah. हालेलुया। Every man, हर एक व्यक्ति, every part has to honor the other part. हर एक अंग को चाहिए कि वो दूसरे का सम्मान करे। Amen. आमेन। Are you listening? हम सुन रहे हैं। आमेन। Amen. Otherwise,
अन्यथा only makeup on the face केवल चेहरे में मेकअप ही लगाकर and the other parts have got nothing. और दूसरे अंगों का कोई उपयोग नहीं, ऐसा लगेगा। There is a vast difference between the color of your hand and the face. आपके चेहरे के रंग और आपके हाथ के रंग में भी बहुत अंतर आ गया होगा। Why? क्यों ऐसा? Because you are only ministering to one part of your body. क्योंकि आप अपने शरीर के केवल एक भाग का ध्यान दे रहे But हैं। Jesus never does like that. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु ऐसा नहीं करता है। Amen. हालेलुया। And few things about the church what Jesus is doing. कलीसिया के बारे में कुछ बात जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। Ephesians 5th chapter talks a lot about it. इफिसियों 5 अध्याय इसके बारे में बहुत कुछ कहता है। Amen. 5th chapter is good one. इफिसियों 5 अध्याय हम खोल लें। It says, वहां लिखा है is the 23rd verse. 23 आयत, For as the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, he saves his own body. वो अपनी स्वयं की देह की रक्षा करता है। Amen. आमेन। If somebody comes to hit you, your hands go up. यदि कोई भी आपको मारने के लिए आए, ये हाथ जो है ये उठ जाते हैं। Why? क्यों? Because the mind, the head gives instructions. क्योंकि सिर उस हाथ को निर्देश देता है। So that is why don't touch us, the church of Jesus, in any way. इसीलिए यीशु मसीह की कलीसिया जो उसकी देह कहलाती उसको ना छुएं। It is dangerous. वो खतरनाक हो सकता है, It is his body. क्योंकि वो मसीह की देह है। Hallelujah. He is the savior. वो उसका उद्धार करता है। Hallelujah. Amen. Not only he saves. न केवल वो उसको बचाता है। The scripture says, वचन में क्या लिखा है? verse 24 says, 24 आयत में लिखा है, Therefore the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband in everything. लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। Meaning, the church has to submit to Christ. यहाँ पर हम पाते हैं कि जिस प्रकार से कलीसिया को चाहिए कि मसीह के अधीन रहे, Meaning submission means obey. और अधीनता का मतलब आज्ञा मानना। Some of the very good troops which we had in the early times, पुराने समय में जो बहुत ही शानदार कुछ हमारे पास में ट्रूप थे, they were the Garhwal regiment, जैसे गढ़वाल रेजिमेंट, the Gorkhas. भारत में गोरखा रेजिमेंट। So these are men, ये ऐसे chosen men, चुने हुए शानदार योद्धा थे who never questioned their officers. जिन्होंने कभी भी अपने अधिकारियों से सवाल वो पलट कर नहीं करते थे, They found a place in the Indian army. और इसी कारण भारतीय फौज में उनको जगह मिल गई थी। Amen. आमेन। We got to submit ourselves. हमें भी चाहिए मसीह के हम अधीन हो जाएं। The church has to submit. कलीसिया को मसीह के अधीन होना जरूरी है। And 25th verse says, और 25 आयत में लिखा है, Husbands, love your wives, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, even as Christ loved the church and gave himself for it. जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। Amen. Christ loved the church. मसीह ने कलीसिया से ऐसा प्रेम किया। You say that church is useless. आप कहते होंगे कि वो कलीसिया बेकार है, The music is not good. वहाँ का गीत संगीत अच्छा नहीं है, The whole structure is not good. वहाँ का वो ढांचा ठीक नहीं है, Pastor is not good. पास्टर उतने अच्छे नहीं है। Listen, सुनिए, if God has placed that church there, परमेश्वर ने यदि उस कलीसिया को वहां पर रखा है, He loves the church. तो याद रखे परमेश्वर अपनी कलीसिया से प्यार करता He है। doesn't love because you've got things. वो इसीलिए प्यार नहीं करता कि आपके पास में चीजें हैं, He loves you वो इसीलिए आपसे प्यार करता है because you accepted Him as His personal Savior. क्योंकि Your personal आपने Savior. यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता करके ग्रहण किया, Chose to follow Him, और आपने चुना है प्रभु यीशु के पीछे to be a चलने, part of His body. और उसकी देह का अंग होने आपने चुना है। So when He loves the church, और इसलिए जब वो कलीसिया से प्यार करता He है, gave Himself for it. इतना प्यार कि उसने अपने आप को उसके लिए दे दिया। You're bought with a price, आप खरीदे गए कीमत देकर, the blood of Jesus Christ. और वो कीमत यीशु के खून की थी। Take care of the sheep उस भेड़ का ख्याल रखिए whom Christ has purchased with His own blood. जिन भेड़ को यीशु ने अपने खून का दाम देकर मोल लिया है। So how precious the church is for Him. इसलिए यीशु मसीह की नजरों में उसकी कलीसिया क्या ही कीमती है।
26th verse says, 26 आयत बोलता है that he might sanctify and cleanse it with the washing of water and the word. कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। Amen. आमेन। God is doing, Jesus is doing his job. यीशु मसीह अपना कार्य कर रहा है। However bad the church looks today, कलीसिया आज के दिन आपको कितने भी खराब स्थिति में क्यों ना नजर आए, listen, लेकिन सुनिए, however expensive a structure might be of a building, एक इमारत की जो ढांचा है कितना भी महंगा क्यों ना हो, when it's being constructed, it doesn't look good. जब उसका निर्माण किया जाता है उस समय उसमें कोई खूबसूरती नहीं दिखती। Lot of rubble is lying here and there. बहुत मलबा यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, Beams are lying here and there. वहाँ पर बल्लियां पड़ी रहती हैं, Sack. वहाँ बोरियां पड़ी रहती हैं, It doesn't look good. वो पूरी जगह सुंदर नहीं दिखती। But the architect has something in his mind. लेकिन उस बनाने वाले, उस रचने वाले आर्किटेक्ट के दिमाग में एक तस्वीर है, What he has made it in his room जो उसने अपने कमरे में बैठकर सोचकर बनाया है, is going to come out exactly how he is वो ठीक planned. वैसा ही वो बनकर तैयार होगा। Jesus has a plan. यीशु मसीह के मन में एक तस्वीर है, Hallelujah. Hallelujah. That he may cleanse it, कि वो उस कलीसिया को शुद्ध करेगा, sanctify it. उसको पवित्र करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। He is doing the job. और ये काम वो खुद कर रहा है। Also, साथ में verse 27 says, 27 आयत बोलती है, he is making a glorious church वो एक तेजस्वी कलीसिया उसे बना रहा है, without spot, without wrinkle, जिसमें कोई कलंक नहीं, कोई झुर्री नहीं, without blemish. जिसमें कोई दाग नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। He has that in his on his mind. उसके मन में वो कलीसिया का चित्रण है, Exactly is going to happen. और ठीक वैसा ही खूबसूरत कलीसिया वो बनाएगा। I always wonder मैं हमेशा सोचता हूँ how these architects make a picture and they make it exactly like what they made on the paper. कि कैसे ये आर्किटेक्ट लोग कागज में जो तस्वीर बनाते हैं जमीन में वैसा ही असलियत में भी बना डालते हैं। If man can do that, यदि एक इंसान होकर ऐसा करने की सामर्थ्य रखता है, how much more? परमेश्वर की सामर्थ्य The कितनी one who बड़ी। said, I build my church. जिसने कहा है कि Hallelujah. मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, Glorious church. महिमा में कलीसिया। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Very good song, I forget. एक बहुत सुंदर गीत है जो मैं Though with a scornful wonder, men see her sore oppressed. यद्यपि एक दुख के साथ लोग उसकी तरफ देखते हैं, By- आश्चर्य के साथ, By schisms rent asunder, by heresies distressed. जो झगड़ों के द्वारा, झूठी शिक्षाओं के द्वारा जो विभाजित हो गई है, But saints their watch are keeping, लेकिन संत लोग अपनी नजर रखे हुए हैं, and their cry goes up how long? और उनकी पुकार कब तक वहां ऊपर पहुंचेगी। And soon the night of weeping बहुत जल्द उन संतों की रात भर का रोना shall turn in joyful morn. वो एक आनंद भरे सुबह के रूप में उदय होगा। The church is one foundation, कलीसिया एक Hallelujah. स्थिर नींव है, is Jesus Christ the Lord. और वो प्रभु यीशु मसीह है। She is a new creation वो एक नई सृष्टि है, by water and by blood. पानी और लहू के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Friends, प्रिय दोस्तों, this church ये कलीसिया is going to be glorious. महिमामय होने वाली है। Hallelujah. हालेलुया। Without spot and without wrinkle. जिनमें कोई भी दाग, कोई झुर्री नहीं होगी। When the thing is done, they're doing the plastering then, जब वहां पर वो लोग एक इमारत की प्लास्टरिंग करते होते हैं, then the wall care, उसके बाद में वॉल केयर लगाते then हैं, the paint, उसके बाद पेंट करते then the हैं, light, उसके बाद रोशनी लगाते हैं, then the polish, उसके बाद पॉलिश किया then जाता is put है, on the light. और उसके बाद जब रोशनी जगमगाती है, It glows. क्या खूबसूरत चमक है। Hallelujah. हालेलुया। The church यीशु की is going to be कलीसिया like that. ऐसे ही खूबसूरत निकलने वाली है। Lastly, और आखिर में 28th and 29th verse. 28 और 29 आयत, So ought men have to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth his. I'm sorry. For no man ever hateth his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. 29th verse. 29 आयत में लिखा है, क्योंकि किसी ने
कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। Amen. आमेन। Nourishes it. वो उसका पालन पोषण करता है। Jesus said to Simon, यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा, if you love me, यदि तू मुझसे प्रेम करता feed my sheep. मेरी भेड़ों को चरा। Nourishing and cherishing. उनको खिलाता है, पालन पोषण करता है, Like a mother does to a small child. जैसे माँ एक बच्चे का पालन पोषण करती है। Amen. आमेन। She's not bothered when it spoils her panty. वो फिक्र नहीं करती जब बच्चा अपने कपड़ों को गंदा मैला कर देता है। She goes and washes it. वो जाती बच्चे को लेकर और उसको फिर से नहाकर साफ करती है। Hallelujah. हालेलुया। Nourishes and cherishing. उसका पालन पोषण करती है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is doing that to the church. यीशु मसीह आज अपनी कलीसिया के साथ वही कर रहा है। Amen. आमेन। And he's coming और वो आने वाला है for a spotless bride. एक बेदाग दुल्हन के लिए। Amen. आमेन। Allow him. उसको अनुमति दें, Obey him. उसकी आज्ञा माने Remember, और याद रखें you are a part आप अंग हैं, of the family of God. परमेश्वर के परिवार के अंग हैं। Next time we see अगली बार जब हम देखेंगे the flock of God, the family of God, the house of God, परमेश्वर का झुंड, परमेश्वर का परिवार और परमेश्वर का घराना bride of Christ. और मसीह की दुल्हन। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, our hearts are filled with thanks to you हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है, for you have placed us in that body, क्योंकि तूने हमको शरीर में एक स्थान में रखा है, the church of Jesus Christ. जो यीशु मसीह की कलीसिया है। Though it might not look so perfect and so good, चाहे वो बहुत सिद्ध और बहुत खूबसूरत ना दिखती हो, but we know this, Lord. लेकिन प्रभु वर्तमान में हम इस बात को जानते हैं, When you are through with all this, जब तू सारा कार्य जो उस पर कर रहा पूरा हो you जाएगा, will present to yourself a glorious church, तेरे सन्मुख एक महिमामय दुल्हन के रूप में तू उसे प्रस्तुत करेगा, without spot and without wrinkle. जिसमें कोई दाग नहीं, कोई झुर्रियां नहीं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। What an assurance. क्या ही आश्वासन है। Bless your people, bless the church. अपने लोगों को आशीष दे, कलीसिया धन्य हो। Bless the church all over the world. सारी दुनिया भर में जो यीशु की कलीसिया धन्य हो, Be blessed in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से वो धन्य हो जाएं। Ask this prayer, इस प्रार्थना को मांगते हैं Jesus' most precious and holy name. यीशु मसीह के बहुमूल्य और कीमती नाम में। Amen. आमेन। Amen.